speak about uterovaginal prolapse. आप अगर सुन नहीं पा रहे होंगे, बीच में कुछ प्रॉब्लम होगा तो do stop me. हाँ, thank you. By definition, as we can see, uterovaginal prolapse में genital prolapse होता है. That is descent of one or more of the genital organs, pelvic organs rather, जिसमें कि we have urethra, bladder, uterus, rectum and the pouch of Douglas. और pouch of Douglas को हम rectovesical pouch भी कहते हैं. So whenever there is a descent of one or more of the genital organs through the fasciomuscular pelvic floor, which is made up of, as we all know, कि pelvic diaphragm से बना होता है, तो उसके below their normal जब जाता है तो उसको हम genital prolapse कहते हैं. इसके बाद the next is vaginal prolapse, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. The topic which I have to discuss today is vaginal prolapse, जिसमें the downward displacement of uterus from its normal position, which is above the level of the ischial spines. तो उसके जब नीचे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम वजाइनल प्रोलैप्स कहते हैं. Now as we all know कि the uterus is kept in its normal position. It is supported. इसके बारे में आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे कि जो सपोर्ट्स होते हैं यूट्रस के, they keep the uterus in a normal position, that is an anti-flexed and the anteverted position. So without going in too much details about anti-flexion and anteversion, I would like to say कि in an anti-flexed and anteverted uterus, it is less prone to prolapse. कोई आप बता सकता है कि ऐसा क्यों होता है कि anteverted uterus में prolapse कम होता है as compared to a retroverted uterus? Anyway, let me tell you कि in an anteverted in a retroverted uterus जिसमें कि the uterine axis and cervical axis is in the same line, उसमें gravity का pull ज़्यादा होता है. तो such uterus जो कि बहुत small percentage में मिलते हैं, they are more prone to prolapse down. Hello. Yes, ma'am. Okay. ठीक है. I was just making sure कि आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं. हाँ? Yes, ma'am. सुन रहे हैं हम लोग. Yes, ma'am. ठीक है. Now the supports of the uterus में है कि ये डी लैंसी, जैसे आपकी बुक में होगा कि डी लैंसी has given 3 levels of support, level 1, level 2 and level 3, which are from above downwards, है ना. That means कि जो level 1 है वो सबसे ऊपर यूट्रस को सपोर्ट करते हैं mainly. Level 2 is cervix and then level 3 is the whole of the uterus, cervix and the vagina. तो लेवल 1 में आपके मेनली आते हैं the uterosacral ligaments and the cardinal ligaments. As the name suggests, the uterosacral ligaments जो होते हैं they are on the lower side of the uterus, जहाँ पे uterus-cervical junction होता है, और sacrum की तरफ backwards जाके they get attached to the S2 and S3, 4 जो bones होती हैं. ठीक है. एंड उसी तरह जो कार्डिनल लिगामेंट्स होते हैं उसको हम मैकिनरॉड्स लिगामेंट्स या ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स भी कहते हैं. एंड दे सपोर्ट द यूट्रस ऑन बोथ द साइड्स. ठीक है, एट द लेवल ऑफ द ischial spines. देन वी कम टू द, इसकी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पिक्चर भी दिखाऊंगी. एंड द नेक्स्ट इज द लेवल 2 सपोर्ट, which is mainly made up of 2 types, a pelvic endopelvic fascia, जिसमें 2 parts होते हैं, the pubocervical fascia and the rectovaginal fascia. So as the name suggests, pubocervical is from the cervix to the back of the pubic bone, and the rectovaginal fascia is from the back of the vaginal wall to the rectum, surrounding the rectum. And the third level of supports of the uterus includes the levator ani muscle. और जैसे कि आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, इट इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, फ्रॉम विच दी जो प्यूबोकॉक्सीजियस मसल है उसके इनर फाइबर्स हेल्प इन सपोर्टिंग द यूट्रस. सो दिस इज द पिक्चर जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर रही थी. सो दीज आर द डी लैंसे लेवल्स. इसमें एज यू कैन सी, आप जैसे देख पा रहे हैं कि जो ऊपर लेवल 1 है उसमें
यूट्रोसैक्रल लिगामेंट एंड कार्डिनल लिगामेंट्स आते हैं जो कि बैक पे जाके आपके सैक्रम पे अटैच हो जाते हैं। एंड जो लेवल 2 पे फेशिया होता है, प्यूबोसर्वाइकल फेशिया एंड द रेक्टोवेजाइनल फेशिया which goes and it is and attached to the white line of arcus tendinous पे attached होता है. And the third level is made up of the levator ani as well as the perineal membrane and the perineal body, which support the whole of the genital organs as well as the other pelvic viscera. This is another view जो कि आपको एक simpler view है जिसमें कि as you can see आपको ये जो green दिख रहे हैं बैक में ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है एंड आगे की तरफ there is the pubocervical ligament एंड ऊपर से यूट्रस के साइड्स में राउंड लिगामेंट्स होते हैं which also help in support. So in this diagram we have divided the supports of uterus into 3 types. सबसे पहले आपका प्राइमरी सपोर्ट्स में जो मस्कुलर सपोर्ट्स हैं, दिस इज ये जो आपका डिवीजन किया है, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू डी लैंसेस but it is according to the muscular, the visceral support and the fibromuscular. This is another way of defining it. तो इसमें muscular support में आप देख सकते हैं there is the pelvic diaphragm and then the pelvic diaphragm which is mainly made up of the levator ani muscle. The perineal body जो है which lies between the vagina and the anal opening. Perineal body it is mainly made up of the inner fibers of the pubococcygeus muscle. And the third is the urogenital diaphragm, that is again the fibers which surround or form a sling around the urethra and the vagina. Then the visceral supports is made up of urinary bladder, the vagina and the uterine axis. The bladder also has fibers, endopelvic fascia fibers which surround the bladder as well as a part of the uterocervical junction. So this also helps in supporting the uterus. Vagina also, because it's a muscular organ, it supports the uterus, and similarly the uterine axis, because it is bent in a way of anteversion and anteflexion. This also जिस जो आपको इस diagram में भी दिख रहा है कि it is an anteverted uterus which is pulled to the side by the round ligament. तो ये अपनी uterine axis also per se helps in supporting the uterus and preventing prolapse. Now we can see the fibromuscular जो आपका नीचे the second diagram है, इसमें the fibromuscular supports which shows the two transverse cervical ligaments on the sides and the uterosacral ligament which is on behind, it is in the form of a hammock. And जो आगे है आपका वो है that is the pubocervical ligament जो मैंने पहले भी mention किया है, which is attached anteriorly to the back surface of the pubic bone. तो ये सारे जो fibers होते हैं they form slings and support the uterus. So whenever there is a disruption to these fibers because of birth injuries or because of weakness in the supports, prolapse happens. आपको कोई query हो तो please you can stop me and ask also, हाँ? Yes, ma'am. आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे बीच में पूछ सकते हैं. Yes, ma'am. हाँ. Because I don't know, I used to work in गनियारी first. आपने सुना है गनियारी में जो hospital है जन स्वास्थ्य सहयोग? I don't know. आप लोगों ने सुना है कि आप लोग बिलासपुर के हैं कोई यहाँ पे? Proper बिलासपुर के? चलो कोई बात नहीं. We'll talk later. Now we go on to damage to the level 1. जो D Lances के आपने definition classification पढ़ा है उसमें जब whenever there is a damage to the level 1. So damage to the level 1 means mainly जो आपके uterocervical junction पे जो support है, which consists of the uterosacrals and the Meckenrods. So it leads to uterine descent. Uterus का descent होता है. Similarly, it also leads to enterocele. Enterocele is basically जो rectovesical pouch है ना, जो पीछे उसमें जब weakness आ जाते हैं उसके supports में, तो it leads to enterocele. And आगे we'll see कि how can we diagnose enterocele, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे.
And the third is vault descent या prolapse. Vault descent या prolapse is an entity कि जिसमें vault descent happens कि जिन patients में hysterectomy हो चुका है, मतलब the uterus has been removed and खाली vault है. And the second condition is prolapse. तो जो menopausal women होती हैं and especially those जिसमें कि the uterus has been removed because hormones नहीं होते हैं, especially estrogen का action नहीं हो रहा है, so the supports become weak and as a result आपका prolapse हो जाता है. डैमेज टू द लेवल 2 में क्या होता है कि जो सेकंड लेवल के आपके सपोर्ट्स हैं जिसमें हमने पढ़ा था ट्यूबो सर्वाइकल फेशिया एंड द रेक्टोवेजाइनल फेशिया. So when there is weakness or damage to the pubo-cervical fascia, the anterior part of the vaginal wall, the anterior vaginal wall में weakness होती है, and along with the anterior vaginal wall prolapse, part of bladder also prolapses into it, है ना, because there is supports में weakness आ गई है. So then the part of the bladder along with the anterior vaginal prolapse को हम cystocele कहते हैं. And जब posterior vaginal wall में there is weakness because उनके supports में weakness आ गई है, तो the posterior vaginal wall prolapses and along with it the part of the rectum also prolapses down, and which we can see when we do a first speculum examination. तो उसको हम rectocele कहते हैं. And then we talk about the damage to the level 3. Huh? इसमें we have whenever there is a prolapse or injury to the pubourethral ligament. तो pubourethral ligament जो urethra को support करता है, तो उसकी वजह से the urethrocoele happens कि part of the anterior vaginal wall के साथ साथ urethra का portion descend करता है, तो उसको हम urethrocoele कहते हैं. And the third, when there is weakness in the levator ani or the supports of the levator, damage to the levator ani muscle होता है या perineal body होता है या especially जब birth when a difficult birth takes place, तो उसके बाद अगर उसको ठीक से stitch नहीं किया जाता है या उसका repair नहीं होता है, then it can lead to a gaping introitus or a deficient perineum. So now we talk about the etiology of the prolapse. इसमें we have atony is first is heading is atony. In atony what happens is कि there are two things. एक basically it is because जब hormones की कमी हो जाती है, जैसे कि we all know कि menopause में the hormones जो होते हैं they stop secreting. तो मेनोपॉज में जब ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, एटोनी की वजह से वो सपोर्ट्स वीक हो जाते हैं and prolapse happens. Similarly, in a congenital weakness defect, when the woman has some congenital defect because of which there is hormones are less, then again prolapse happens, but इसमें cervical elongation होता है, ठीक है. Then the other major part of the etiology is birth injuries, which we see commonly. And birth injuries में we have कि whenever there is mismanagement of the labor, especially like prolonged labor अगर होता है या difficult delivery है, big baby है जिसकी वजह से a perineal tear happens, or also because of prolonged pressure of the baby on the surrounding on the uterus and the surrounding viscera, the pudendal nerve is sometimes damaged. तो इसकी वजह से birth injuries की वजह से भी there is a weakness in the support of the uterus, and so it causes prolapse. And some of the other causes which are also important, if somebody has a woman has chronic bronchitis, or if she is a chronic smoker, then also there is another conditions also जिसमें कि raised intra-abdominal pressure हो जाता है, like constipation or constipation, which also because there is a raised intra-abdominal pressure, there is a constant push on the uterus, because of which prolapse may happen.
And similarly, there is another condition कि when there is a large cervical polyp, उसकी वजह से भी because it pulls on the uterus, a prolapse of the uterus may. बट ये रेयर कॉजेज हैं. मेन कॉजेज जो होते हैं वो आपका एटोनी होता है और बर्थ इंजरीज के. अगर बर्थ इंजरीज को ठीक से मैनेज नहीं किया जाता है, अगर perineal tear हो गया, उसको we have not repaired it properly, or if there is a labor which has not been managed properly, so it can cause prolapse. Now, although classification के लिए आपकी books में there are 2 or 3 classifications given, but जो commonly classification use किया जाता है, that is the uterovaginal prolapse system का classification, जिसके बारे में I will talk now. इसमें as we can see कि when there is the anterior vaginal wall prolapse, तो उसमें when the lower 2/3 of the anterior vaginal wall prolapses, so it gives rise to cystocele. And when there is prolapse of the upper part of the anterior vaginal wall, then it causes erythrocele. Similarly, in the posterior vaginal wall, if the upper part of the posterior vaginal wall prolapses because of weakness in the support of the uterus, then it causes enterocele. And enterocele के लिए है कि when along with the enterocele, the bowel loops also prolapse into that part of the vaginal wall, and one can, when one is examining the patient, we can hear a gurgling sound of the bowel loop. And the last is rectocele, जिसमें कि the lower part of the posterior vaginal wall prolapses. And then we talk about uterine descent. Uterine descent is कि when the descent of the cervix is into the vagina, then that is known as first degree of prolapse. When it reaches up to the introitus, then we call it the second degree of prolapse. And when the cervix is outside the introitus, then it is the third degree of prolapse. Prosidentia is a condition जिसमें कि third degree के साथ साथ when the whole uterus comes out, prolapses outside the introitus, तो इसको हम prosidentia कहते हैं. And this is usually seen in post-menopausal women. So जो classification which I have talked about it, उसी का ये picture है, which is also there in your books. आपके books में भी है. So as you can see कि जो normal है उसमें cervix is at the level of the ischial spines. First degree में as you can see कि the cervix has moved down and it is into the vagina. And second degree में further down आ गया है cervix slip करके, and now it is at the level of the introitus. Third degree में the cervix is outside the introitus. And if you can see prosidentia, जैसे मैंने बताया, it is a condition in which along with the cervix, the whole uterus also comes down outside the introitus. ठीक है? And इसमें if you can see कि the second and third degree में the supracervical part of the cervix it elongates. Now we'll talk about the anterior vaginal wall prolapse in a little more detail. So as we know कि anterior vaginal wall में the uterus जो है, there are supports of the bladder neck, मतलब that is the facial supports and the pubourethral ligament which supports the bladder neck. Similarly, there is weakness in the supports of the uretrovesical junction and also a part of the urethra. So जो pubocervical fascia and pubourethral ligaments होते हैं आगे की तरफ in front of the uterus जो support कर रहे होते हैं, उसमें जब weakness आती है, this causes the prolapse of the anterior vaginal wall, and उसके साथ साथ along with the anterior vaginal wall, a part of the urethra or a part of the bladder also prolapses into it, and उसको हम cystocele भी कहते हैं, and erythrocele. So now as you can see from this diagram, अगर आप देखेंगे तो जो ये blue color का arrow लगा हुआ है ना, and as you can see, this is depicting a cystocele, because as you can see, uterus के नीचे the anterior vaginal wall is prolapsing outside the, which we can see outside the introitus, and along with it, a part of the bladder is also prolapsing. So this is a cystocele.
And similarly you can see in the second जो दूसरा एक round उसमें picture है कि एक colpexin sphere या pessary has been kept in place and this helps in reducing the cystocele. एंड जो आपको दूसरा पिक्चर है दैट शोज वेरी क्लियरली जो ब्लैक एरो है वो दिखा रहा है कि ये यूरिथ्रोसील है जिसमें कि पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा इज प्रोलैप्सिंग इनटू द इंटीरियर वजाइनल वॉल के साथ साथ इनटू द वजाइना. सो दिस इज अ यूरिथ्रोसील. Similarly, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं there is a picture of कि when the lower part of the posterior vaginal wall prolapse happens because of weakness in the rectovaginal fascia as well as in the perineal body. So this condition is known as a rectocele because a part of the rectum prolapses along with it. And similarly, the picture is not showing it, but enterocele अगर हमें if enterocele happens तो the upper part of the posterior vaginal wall, upper 1/3 usually prolapses, and along with that defect we can also see the bowel loops prolapsing into it. We cannot not see but we can feel if we examine the patient from first speculum अगर हम करते हैं examination. So now we talk about the symptoms of prolapse. तो जो pelvic disorders होते हैं, pelvic floor disorders होते हैं, इसमें there are symptomatic through two mechanisms होते हैं. एक तो per se because whenever the prolapse happens, when the prolapse occurs, there are mechanical difficulties. Mechanical difficulties से I mean कि like there is a difficulty in walking because the prolapse part is there. The woman has a difficulty in walking, and also because there is a stretch and pull on the ligaments, she has backache. And the second part is कि जो mechanical difficulties के अलावा the second is कि there is a bladder or a bowel dysfunction which disrupts either storage or emptying, by which I mean to say that कि because the part of the bladder also prolapses जिसको कि हमने cystocele कहा है, it results in some complications of the bladder wall, bladder per se, and similarly because the bowel part of the rectum also prolapses along with the uterus, so उसके भी कुछ problems होते हैं. तो per se there are two types of symptoms which we can see in prolapse and about which we will talk in detail in the next few slides. So if we see अगर हम किसी patient को जिसको prolapse है, अगर हम उसका clinical presentation के बारे में बात करें, तो even before the prolapse happens, उससे मेरा मतलब है कि first degree का prolapse है which may be there in the vagina and the patient cannot see it, but she feels a sensation of weakness in the perineum, है ना? मतलब she has backache, she has some pain, she has some feeling of heaviness before she actually notices the mass, because as we discussed earlier, the mass is only noticed when the descent happens below the outside the introitus. We don't notice a mass before that. So the patient initially जिसको prolapse है, she feels a sensation of weakness in the perineum, yeah, heaviness towards the end of the day. Why towards the end of the day? Because when she walks or she works or she does some heavy work, there is a pull of the gravity. इसीलिए शाम तक उसको ये परेशानी होती है. Similarly, she may be having urinary symptoms like she may be having urgency, she may be having frequency by day. Now, why does this happen? Because cystocele होता है. Cystocele is prolapse of the vagina, and when the cystocele becomes large, जब बड़ा हो जाता है cystocele, तो उसमें यूरिन स्टैग्नेट करने लगता है, रेजिडुअल यूरिन रह जाता है, and even if she strains a lot, she is not able to pass the urine because जो cystocele का लेवल है, it is below the level of the urethra, है ना? तो वो यूरिन अगेंस्ट द ग्रेविटी जाके उसमें यूरिथ्रा में नहीं जा पाता है. So and it becomes it has a residual urine, and then this residual urine is more prone to infection. Stagnating urine is more prone to infection, and before infection happens also because patient को बहुत strain करना पड़ता है even to pass small amounts of urine. तो bladder का जो mucosa होता है उसकी
थिकनिंग होती है, पर ट्रैबेक्युलेशंस बन जाते हैं, है? तो जिसकी वजह से सिस्टाइटिस आता है। एंड वंस उसको सिस्टाइटिस डेवलप करता है तो फ्रीक्वेंसी होती है, फीवर होता है, डिस्यूरिया होता है एंड अदर सिम्टम्स फॉलो। एंड स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हैपेंस जब आपका यूरिथ्रोसील होता है कि पेशेंट का यूरिन ड्रिबल कर जाता है इवन बिफोर शी इज एबल टू मिक्सचरेट, है। दिस इज अगेन बिकॉज जब यूरिथ्रा के सपोर्ट्स में वीकनेस आती है। एंड स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को हम बोनीस टेस्ट से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। So inability to micturate में sometimes if you take a proper history, जो patient है वो often she says कि she has to push the cystocele up with her fingers and then she is able to micturate. That is because कि जब वो cystocele को ऊपर push करती है तो it goes the bladder wall जो है it is above the reaches above the level of the urethra, so she is able to pass urine. और इसको आपके books में as it is described as splinting. Then there are patient also has coital difficulties. It's a mechanical because of the presence of the prolapse. Huh? Rectal symptoms also happen in which patient has a difficulty in passing stools, but these are not very common. And there is also a constant desire to defecate because जब rectocele होता है तो उसमें stool collect हो जाता है and patient has to again इसमें भी they have to push it sometimes, जो rectocele को push back करने से they are able to pass stools easily, है ना? And बहुत ज़्यादा because they have to strain, तो उससे उनको हेमोरॉइड्स भी डेवलप हो जाते हैं। Backache, as I said earlier, it is common because there is a stretch on the ligaments as the prolapse is increasing in size. The ligaments are stretched a lot and then that leads to backache. Leukorrhea, as we see कि leukorrhea is because कि जब prolapsed part बाहर आ जाता है cervix का तो उसमें उसका जो blood supply है, उसका जो lymphatics का supply है वो congest हो जाता है, उसमें difficulty होती है as a result of which congestion takes place and उसकी वजह से chronic cervicitis हो जाता है, white discharge होता है. And also then patients may present with decubitus ulcer on the uterus. Yeah? And whenever there is a decubitus ulcer on the prolapsed part, this may be purulent or it may be blood stained. So patient may also come to you with a complaint of कि उसको blood stained या purulent discharge हो रहा है. So before we आपने उसको पेशेंट को देख के उसका हिस्ट्री लिया है, फिर उसके सिम्टम्स के बारे में, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बारे में पूछा है. नाउ वी हैव टू कंफर्म द फाइंडिंग्स. जो पेशेंट बता रहा है उसको हमें कंफर्म करना है. सो बिफोर वी डू अ पर्स स्पेकुलम एग्जामिनेशन, वन शुड हैव अ केयरफुल इंस्पेक्शन की वजाइना पे, वल्वा को भी देखना चाहिए और वजाइना को भी देखना चाहिए, है ना, बिफोर वी डू अ पर्स स्पेकुलम. सो वुड यू लाइक टू, कोई बताना चाहेगा कि क्यों करते हैं हम वल्वा या वजाइना को, हमें पहले लोकल एग्जामिनेशन क्यों करना चाहिए? कुछ तो इसमें लिखा है कि कोई इरोजन्स या अल्सरेशंस तो नहीं है, लेकिन और कोई कारण आप लोगों में से कोई बताएगा? वुड एनीबॉडी लाइक टू ऐड? पार्डन मी, क्या बोला आपने? मैम ये सर्विस को हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीए सर्विक्स हमें एक्सक्लूड करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हिस्ट्री दे रही है कि उसको ब्लड स्टेन डिस्चार्ज जा रहा है, तो स्पेशली अगर कोई मेनोपॉजिबल वुमेन या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की भी है तो हमें, वेरी गुड आपने ठीक बोला, सीए सर्विक्स हमें एक्सक्लूड करना चाहिए. उसके अलावा अभी हम आगे जाके जैसे डिफरेंशियल्स पढ़ेंगे, तो अगर कोई वल्वा की सिस्ट है या एंटीरियर वजाइनल वॉल की कोई सिस्ट है, तो वो भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ जाती है प्रोलैप्स की, है ना. तो इसीलिए हमें जो एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो हमें जितने भी डिफरेंशियल्स होते हैं उनको माइंड में रखकर देखना चाहिए. तो देयर शुड बी अ केयरफुल इंस्पेक्शन ऑफ वल्वा एंड वजाइना. देन उसके बाद हम प्रोलैप्स को असेस करेंगे, है ना, जिसके बारे में अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी कि हाउ डू वी असेस. एंड ऑल्सो इफ वी फाइंड एनी सस्पिशियस लीजन्स एज यू वर सेइंग, तो उसका हमें बायोप्सी भी साथ में ही ले लेना चाहिए.
because if there is a cervical, if there is a malignancy, then management जो है वो थोड़ा सा different हो जाता है. So now as for examination, the most important is the position of the patient for examination. Normally हम dorsal lithotomy position में रख के we examine the patient, but sometimes it happens कि जब prolapse first degree या second degree का हो तो वो दिखता नहीं है. तो ऐसे conditions में और patient से आप पूछोगे तो वो they give you a history कि जब वो strain करते हैं जब वो बहुत देर के लिए स्क्वाट या स्टैंड करते हैं, खड़े रहते हैं, तो वो प्रोलैप्स हो जाता है. सो देन अगर ऐसा है तो फिर वी शुड एग्जामिन द पेशेंट इन द स्टैंडिंग पोजीशन आल्सो. हाँ, तो पोजीशन में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ द प्रोलैप्स. फिर एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे पहले आपने बात किया कि लोकल एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए देखने के लिए कि वल्वा या वजाइना ये ठीक है ना, उसमें कोई और पैथोलॉजी तो साथ में नहीं है. Then we move on to first speculum examination. तो first speculum examination में क्या है? Normally whenever we examine a woman for any gynecological conditions, हम उनको urine hold मतलब urine pass करके फिर लिटाते हैं ना for examination के लिए. But prolapse is a condition जिसमें we don't ask the woman to pass urine first. उसको हम नहीं बोलते कि आप पहले urine pass करके आओ, because हमें अगर cystocele के लिए देखना है तो इट इज गुड कि अगर उसका ब्लैडर फुल है. ठीक है, तो पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें कि हम द डिग्री ऑफ प्रोलैप्स भी देखते हैं, साथ में अगर उसको दूसरा जैसे कि उसको सिस्टोसील, यूरिथ्रोसील या रेक्टोसील है तो उसके लिए भी एग्जामिनेशन करते हैं. ठीक है, देन वी मूव ऑन टू पर वजाइनल एग्जामिनेशन या बायमैनुअल एग्जामिनेशन होता है. तो बायमैनुअल एग्जामिनेशन में इज बेसिकली, आप बताओगे कोई कि व्हाई डू वी डू अ बायमैनुअल एग्जामिनेशन? मैम फिंगर टेस्ट है नहीं. हाँ, बायमैनुअल एग्जामिनेशन में जो वजाइना है उसमें हम 2 फिंगर्स डालते हैं ना, अपना yes, आपका इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर. yes, और दूसरा जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको हम पेल्विस के ऊपर रखते हैं, है ना, yes, लो जो हाइपोगैस्ट्रिक पार्ट है ना, yes, उसमें रख के हम यूट्रस को अपने दोनों हैंड्स के बीच में बायमैनुअली पाल्पेट करते हैं, है ना. तो बेसिकली वी डू इट कि एक तो हमें यूट्रस का साइज पता चलना चाहिए, यूट्रस में और उसकी मोबिलिटी है कि नहीं, एंड ऑल्सो कि कोई साथ में एडनेक्सल मास तो नहीं है. बिकॉज सपोजिंग हम उसके लिए प्लान कर रहे हैं कि हमें उसके लिए सर्जरी करनी है, तो वी हैव टू नो ना कि उसको साथ में उसका यूट्रस का साइज क्या है, या उसके साथ कोई और फाइब्रॉइड तो नहीं है, या कोई ओवेरियन ट्यूब मास तो नहीं है. तो इसलिए हम उसकी मोबिलिटी अच्छी है कि नहीं है, बिकॉज अगर आपको ऑपरेट करना है तो यू नीड टू नो अबाउट दिस थिंग्स, है ना. सो इसलिए वी डू अ बायमैनुअल एग्जामिनेशन. ठीक है, बोनी स्ट्रेस टेस्ट इज बेसिकली फॉर यूरिथ्रोसील. तो इसमें क्या है कि बोनी स्ट्रेस टेस्ट में आप पेशेंट को लिथार्मी पोजीशन में लिटा के आप वी आस्क हर टू कॉफ. तो कॉफ करने पे अगर यूरिन ड्रिबल कर रहा है ना, तो नेक्स्ट व्हाट वी डू इज कि वी प्लेस आवर 2 फिंगर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द यूरिथ्रा, है ना, द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर, और उसको प्रेस करके हम पेशेंट को फिर से कॉफ करने को बोलते हैं. तो जब हम इसके बाद कॉफ करने को बोलते हैं तो यूरिन नहीं आता है. दैट मीन्स कि उसके जो यूरिथ्रल सपोर्ट्स है उसमें वीकनेस है. तो दिस इज बोनी स्ट्रेस टेस्ट. इससे बेसिकली वी आर ट्राइंग टू कंफर्म अ यूरिथ्रोसील. ठीक है, देन द इवैल्यूएशन ऑफ द टोन ऑफ द पेल्विक मसल्स. तो ये हम कैसे करते हैं बताएगा, आप लोग में से कोई बताना चाहेगा? अच्छा चलो मैं बता देती हूँ. जो टोन ऑफ पेल्विक मसल्स के लिए हम देखते हैं, अगेन इसमें भी क्या है कि जब बिकॉज ऑफ लॉन्ग प्रोलॉन्ग बेयरिंग डाउन या बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर, जो पेल्विक मसल्स जो थर्ड लेवल ऑफ मसल्स होते हैं उसमें वीकनेस आ जाती है, या अगर पेरिनियल टियर हुआ है पिछले डिलीवरी में या प्रीवियस डिलीवरीज में एंड इट हैज नॉट बीन मैनेज्ड प्रॉपर्ली, तो अगेन द टोन गोज डाउन. तो उसके लिए वी पुट 1 फिंगर इन द वजाइना एंड दूसरा जो थंब है उसको हम लिविटर एनाई मसल्स के ऊपर एक्सटर्नली रख के वी ट्राई टू प्रेस इट. मतलब फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब के बीच में मसल को प्रेस करके फील करते हैं, है ना, कि वेदर द टोन इज गुड या इट इज लैक्स, है ना. तो
वो भी हमको देखना होता है, बिकॉज वी हैव टू डिसाइड द मैनेजमेंट कि जब हम सर्जरी करेंगे कि डज शी नीड कि उसका जो पोस्टीरियर कल्पोपेरिनियोग्राफी होता है, पोस्टीरियर मतलब इन द सेंस कि जो आपका रेक्टोसील उसमें है या वीकनेस है, तो उसको भी हम साथ में ही रिपेयर करेंगे। प्रोलैप्स जो डिसेंट है उसकी तो सर्जरी होगी, लेकिन पोस्टीरियर वजाइनल वॉल में भी जो वीकनेस है उसके लिए भी हम साथ में रिपेयर करेंगे। एंड सिमिलरली रेक्टो वजाइनल एग्जामिनेशन भी होता है कि जिसमें वन फिंगर इज पुट इन द वजाइना of the hand and the other is in the rectum and we try to feel for the tone of the perineal body. ठीक है ना, रेक्टम एंड वजाइना में एक एक फिंगर रख के हम उसके बीच में प्रेस करके पेरिनियल बॉडी को देखने की कोशिश करते हैं कि पेरिनियल बॉडी का टोन कैसा है। अगर उसमें हमें वीकनेस लगती है तो जब हम सर्जरी प्लान करेंगे तो वी विल रिपेयर दैट आल्सो। ठीक है, सो बेसिकली एन एग्जामिनेशन इज डन टू सी कि सारी चीजें जो जिसमें सब चीजों में जहां प्रॉब्लम है एंड टू आइडेंटिफाई देम एंड देन टू रिपेयर देम इन वन ऑपरेशन at one step. So अगर आप एग्जामिन करेंगे the sequence of events is कि when we ask a woman to bear down, तो सबसे पहले when a lady is asked to strain, the anterior vaginal wall का जो prolapse होता है वो सबसे पहले हमें दिखता है ना, उसमें हमें यूरेथ्रोसील भी दिख सकता है एंड सिस्टोसील भी दिख सकता है। उसके बाद फिर और वो अगर स्ट्रेन करती है तो आपका सर्वाइकल हाँ, जब वो और स्ट्रेन करती है तो सर्वाइकल प्रोलैप्स और उसके साथ यूट्राइन डिसेंट दिखता है एंड इन द एंड वी सी फॉर द पोस्टीरियर वजाइनल प्रोलैप्स। तो व्हाट आई मीन टू से कि सबसे पहले हम सिस्टोसील एग्जामिन करते हैं, वी लुक फॉर अ सिस्टोसील एंड अ यूरेथ्रोसील, then we see ki what is the degree of the uterine descent, whether it is first degree, it is in the vagina, or it is second degree when it is at the level of the introitus, or third degree, है ना। and then the last में the posterior vaginal wall prolapse के लिए examine करते हैं। so this is a sequence of events जब हम first speculum examination करते हैं in a lady who is complaining of prolapse। तो इसके बाद ना आप जैसे ये पिक्चर आप देख रहे हो, आप इस पिक्चर से आपको क्या समझ में आ रहा है, कोई बताना चाहेगा? मैम तो यूट्राइन प्रोलैप्स लग रहा है। हाँ, यूट्राइन प्रोलैप्स लग रहा है, तो इसमें क्या डिग्री है आप बताना चाहोगे? आपको क्या डिग्री लग रहा है? नहीं पता। अच्छा ठीक है। अच्छा, एज यू कैन सी अगर आप इसका फिजिकली जो क्लिनिकल इसमें देखोगे, ये जो है पूरा इंटीरियर वेजाइनल वॉल है ना, ये नीचे सर्विक्स है, ये सर्विक्स, ये डेक्यूपेटस अल्सर दिख रहा है और उसके पीछे सर्विक्स है और ये पूरा यूट्रस बाहर है। इफ यू कैन मेक आउट, पूरा एंटीरियर वेजाइनल वॉल है जो बाहर है और उसके अंदर अगर हम फील करेंगे ना अपने हैंड के बीच में तो यूट्रस भी है। तो दिस इज शी इज अ वुमन विद प्रोसिडेंशिया। ठीक है, मतलब जितने भी कंटेंट्स हैं सब बाहर आ गए हैं। ठीक है, इसमें एवरीथिंग इज आउटसाइड, तो दिस इज अ लेडी विद प्रोसिडेंशिया। हमने पढ़ा था ना कि जब वो जस्ट वजाइना में होता है तो फर्स्ट डिग्री है, इंट्रोइटस के लेवल पे है वो सेकंड डिग्री है, और अगर बिल्कुल बाहर आ गया है तो थर्ड डिग्री है। एंड प्रोसिडेंशिया है कि अगर इसके अंदर हम पैल्पेट करेंगे यूट्रस भी है तो वो प्रोसिडेंशिया कहलाता है। सो मोस्ट प्रोबेबली दिस लेडी हैज अ प्रोसिडेंशिया। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी कि क्योंकि ये बिल्कुल बहुत दिनों का मतलब क्रॉनिक प्रोलैप्स है, तो अगर आप देखेंगे तो द स्किन इज वेरी ड्राई, है ना। स्किन बिकॉज बाहर एक्सपोज होती है या अंदर होती है होती है ना, लेकिन बहुत देर से जब पेशेंट को बहुत प्रोलैप्स, तो इसको मैकेनिकल प्रेशर होता है, रबिंग होता है, फ्रिक्शन होता है, तो द स्किन वेरी ड्राई, है ना। एंड फिर नीचे के पार्ट में इफ यू सी लो डाउन देयर इज अ अल्सर व्हिच इज अ डेक्यूबिटस अल्सर। ठीक है, तो आप डेक्यूबिटस अल्सर जो होता है कि इट हैज गॉट क्लीन मार्जिन्स होती हैं। अगर हम सोचें कि ये मेलिग्नेंट तो नहीं है ना, तो नॉर्मली इट हैज क्लीन फाइन स्मूथ मार्जिन्स होती है, जबकि अगर कोई मेलिग्नेंट अल्सर होता है तो उसमें इरेगुलर मार्जिन्स होती है विच ब्लीड आल्सो, है ना। बट ये आप देखोगे दीज आर क्लीन मार्जिन्स, क्लीन एजेस हैं। तो ये डेक्यूबिटस अल्सर क्यों फॉर्म होता है? बेसिकली क्या है कि जब प्रोलैप्स बहुत देर तक बाहर रहता है
है ना, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बाहर आ जाता है, पूरा हैंग करता है। तो उसमें उसका जो ब्लड सप्लाई है ये ऊपर ये सब, और यहाँ पे द इंट्रोइटस पे जो है वो कंजेस्ट हो जाता है ना, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इसका जो हिस्सा बाहर आ जाता है ना, तो कंजेशन होने लगता है। एंड कंजेशन की वजह से जो जब वीकनेस वो ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो ये इट गिव्स वे एंड इट फॉर्म्स एन अल्सर। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है डेक्यूबिटस अल्सर का, कि इफ वी रिपोज इट बैक, मतलब ये जो आपका सिस्टोसील एंड ये जो पूरा प्रोसीडेंशिया इसको हम वापस अंदर कर दें फिंगर पुश करके, चाहे तो पेशेंट भी कर सकती है या इनिशियली टू टीच देम, अगर हम उसको वापस अंदर रिपोज कर दें उसकी नॉर्मल पोजीशन में, है ना, उसका मतलब है कि इसको पूरा अंदर धक्का दे दें वापस। एंड उसके बाद इसकी हम पैकिंग करें। पैकिंग करते हैं किस चीज से करते हैं, कोई बताएगा किस चीज से हम पैकिंग करते हैं प्रोलैप्स के पेशेंट्स में? एक्रीफ्लेविन ग्लिसरीन की पैकिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्रीफ्लेविन ग्लिसरीन का सोल्यूशन होता है, वो एक उस पे गॉज पे या पैड पे लगा के उसको अंदर हम वजाइना में डाल देते हैं आफ्टर रिड्यूसिंग। तो उसको जब अंदर डाल देते हैं तो एक्रीफ्लेविन हैज एन एंटीसेप्टिक इफेक्ट, मतलब वो जो है जो इन्फेक्शन लोकल है उसके ऊपर एक्ट करता है। एंड जो आपका ग्लिसरीन है वो एडिमा को कम करता है। आप देख रहे हैं ना एडिमा दिख रहा है अराउंड द अल्सर आपको, है ना, तो वो एडिमा को कम करता है। तो बेसिकली इस अल्सर बिफोर वी अटेम्प्ट एनी सर्जरी ऑन अ वुमन हु हैज प्रोलैप्स, हमें ये डेक्यूपिटस अल्सर को और ये जो एडिमा इतना दिख रहा है उसको कम करना होता है ना। तो बेसिकली आपको पेशेंट को एडमिट करके वी हैव टू टीच हर कि उसको एक्रीफ्लेविन ग्लिसरीन का पैकिंग करना है आफ्टर पुशिंग द यूट्रस इनसाइड, आफ्टर पुशिंग दिस प्रोसीडेंशिया इनसाइड। ठीक है, तो उसके बाद शी बिकम्स फिट फॉर सर्जरी। ये डायग्राम फिर से मैंने इसलिए डाला था कि आई वांटेड टू टेल यू कि जो ये आपको दिख रहा है ये जो सेकंड एंड थर्ड डिग्री प्रोलैप्स है, इसमें जो है जो सुप्रा ये प्रोलॉन्गेशन गलती से छप गया है, द सुप्रा वजाइनल पार्ट ऑफ जो सुप्रा सर्वाइकल पार्ट होता है, मतलब सर्विक्स का मतलब द पार्ट ऑफ द सर्विक्स व्हिच इज अबव द लेवल ऑफ द इस्चियल स्पाइन, मतलब जो सुप्रा सर्वाइकल पार्ट होता है ना, एक तो सर्विक्स का पार्ट होता है जो वजाइना में दिखता है हमें, और दूसरा पार्ट सर्विक्स का होता है विच वी कैनॉट सी नीचे से, बट जो अंदर होता है ना द सुप्रा सर्वाइकल पार्ट, उसका इलोंगेशन होता है। देखो आप सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री में जो सुप्रा सर्वाइकल पार्ट ऑफ द सर्विक्स है वो स्ट्रेच होके नीचे आके उसका इलोंगेशन होता है। ठीक है, बट जब प्रोसीडेंशिया होता है, ये आपकी बुक्स में भी है, आप एक बार पढ़ लेंगे उसको, कि सेकेंड एंड थर्ड डिग्री ऑफ प्रोलैप्स में द सुप्रा सर्वाइकल पार्ट ऑफ द सर्विक्स इलोंगेट्स, एंड प्रोसीडेंशिया में एज यू कैन सी क्योंकि पूरा यूट्रस एंड सर्विक्स पूरा बाहर आ गया है तो वो सुप्रा सर्वाइकल इलोंगेशन नहीं होता है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेरी तो नहीं है आपका, किसी को कुछ नहीं है? ठीक है, ये आपकी बुक्स में दिया है, आप पढ़ लो एक बार, अगली बार अगर आप में क्लास जब होती है इफ देयर इज एनी क्वेरी, तो कभी कभी समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, बिकॉज इसमें क्या है कि जब सुप्रा सर्वाइकल इलोंगेशन होता है ना, तो जो फॉर्निसीज होते हैं उसमें एग्जामिनेशन में थोड़ी सी फाइंडिंग्स अलग होती है ना, तो आप वो पढ़ लेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंशिया में फॉर्निसीज सेम ही रहते हैं बिकॉज पूरा का पूरा ही बाहर आ गया है ना। ठीक है, अब क्या होता है पर से जो हमने पढ़ा था अभी जब हम सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे थे कि एक तो मैकेनिकल उसकी वजह से होता है, और दूसरा है बिकॉज जब साथ में ब्लैडर और जो आपका बावल है या रेक्टम है वो भी बाहर आ रहा है तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो वो कॉम्प्लिकेटेड प्रेजेंटेशंस के बारे में आई वुड लाइक टू से, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, है ना। सो व्हाट हैपेंस इज कि whenever there is a large cystocele कि ब्लैडर आपका क्या कहते हैं एंटीरियर वेजाइनल वॉल प्रोलैप्स हुआ, उसके साथ साथ ब्लैडर का भी वॉल, ब्लैडर का कौन सा वॉल प्रोलैप्स करेगा, आप बताओगे कौन सा वॉल ब्लैडर का प्रोलैप्स करेगा अलोंग विद द एंटीरियर वेजाइनल वॉल? अगर आप रिलेशंस देखेंगे ब्लैडर के विद द यूट्रस, तो कौन सा पार्ट होता है ब्लैडर का विच कम्स इन कांटेक्ट विद द यूट्रस एंड द वजाइना? Posterior.
हाँ पोस्टीरियर, हाँ ठीक बोला आपने। जो पोस्टीरियर वॉल होती है ब्लैडर की वो प्रोलैप्स करती है एंटीरियर वेजाइनल वॉल के साथ साथ प्रोलैप्स में, है ना। तो जब आपकी पोस्टीरियर ब्लैडर वॉल प्रोलैप्स करती है तो जैसे कि हमें मालूम है कि दोनों यूरेटर्स जो होते हैं वो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर में ही खुलते हैं। मैं ठीक बोल रही हूँ ना, आप लोगों ने एनाटॉमी अभी किया है कुछ दिन पहले, तो वो पीछे में खुलते हैं, है ना। तो जब ब्लैडर प्रोलैप ये आपका ब्लैडर वॉल प्रोलैप्स करता है तो आपके ये यूरेटर्स भी स्ट्रेच हो जाते हैं, किंक हो जाते हैं रादर, है ना। जो यूरेट्रिक ओपनिंग्स हैं वो भी किंक हो जाती है। तो जब यूरेट्रिक ओपनिंग्स किंक होती हैं तो बैक प्रेशर से क्या होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा, ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बता रही हूँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज तो डू आस्क मी, है ना। तो Yes. व्हाट हैपेंस इज कि जो बायलैटरल यूरेटर्स हैं वो किंक होने लगते हैं, तो जो बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है एंड द किडनी साइज आल्सो इंक्रीजेस, जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आर आल्सो प्रोन, है ना। ठीक है, मतलब किडनी में भी कलेक्शन की वजह से पायोनेफ्रोसिस हो सकता है। अगर वो हाइड्रोनेफ्रोसिस इन्फेक्ट हो जाता है तो इट मे गिव राइज टू फीवर। सिमिलरली क्या होता है कि जब आपका यूरिथ्रोसील होता है, यूरिथ्रोसील विच इज अगेन इज अ पार्ट ऑफ द ब्लैडर वॉल के एंटीरियर वेजाइनल वॉल के साथ यूरिथ्रा स्टार्ट्स प्रोलैप्सिंग, तो उसकी वजह से क्या होता है अलोंग विद द सिस्टोसील रेजिडुअल यूरिन भी आने लगता है, जैसे जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। द रेजिडुअल यूरिन कलेक्ट्स इन दी सिस्टोसील। तो जब वो यूरिन स्टैग्नेट करती है तो देन इट बिकम्स मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। तो उसमें क्या होता है कि लोकल सिस्टाइटिस होती है। लोकल सिस्टाइटिस में व्हाट हैपेंस इज कि द पेशेंट स्टार्ट्स हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, है ना, एंड उसको डिसयूरिया होने लगता है। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कि प्रोलैप्स में लोअर यूटीआई भी होता है विच इज urinary tract infection of the lower part because of the large cystocele, and also one may have upper UTI, that is infection of the kidneys, है ना, जिसमें कि that is because of hydronephrosis and kinking of the ureters। ठीक है, तो जिसमें कि अगर हम आगे इन्वेस्टिगेशन में बात करेंगे the creatinine levels may also go up. The second important complicated presentation is the incarceration of prolapse. Incarceration of prolapse में what happens is कि when there is a complete precedentia, वो जो बिल्कुल बाहर प्रोलैप्स आ जाता है एंड जब वो हैंग करता है तो उसमें जैसे कि हमने पढ़ा कि उसका जो सर्कुलेशन है या जो ब्लड सप्लाई है प्रोलैप्स का वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है एंड वो नीचे बहुत इडिमा, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो भी नहीं ठीक से हो पाता है, तो नीचे प्रोलैप्स में इडिमा बहुत हो जाता है एंड समटाइम्स वो इतना एडिमेटस और बड़ा हो जाता है कि वो इनकार्सिरेट हो जाता है इन द सेंस कि इवन इफ द पेशेंट वांट्स टू रिड्यूस इट बैक समटाइम्स कि उसको आप रिड्यूस करके वापस अंदर वजाइना में पुश कर दो, वो नहीं हो पाता है। सो देन ऑब्वियसली जब बहुत दिनों तक इनकार्सिरेटेड रहता है तो इट मे गिव राइज टू सम फॉर्म ऑफ मैलिग्नेंसी आल्सो एट द लोकल साइट ऑफ इन जहाँ पे कि इनकार्सिरेटेड है। ठीक है, and now before we usually the treatment for prolapse is surgical, तो इसके लिए we need to have a laboratory workup also, तो जिसमें hemogram है, जिसमें basically we have to look for the hemoglobin levels and also for signs of infection. Similarly, because such women are more prone to UTIs, we have to do a urine microexamination, microscopy to look for pus cells, and then अगर urinary tract infection आता है तो culture भी करते हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट देखते हैं जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर अपर हाइड्रोनेफ्रोसिस बायलैटरल हो रहा है यूरेटर्स के कॉम्प्रोमाइज होने से, तो द रीनल फंक्शन टेस्ट आर आल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड एंड जो क्रिएटिनिन लेवल्स होते हैं दे में गो अप। चेस्ट एक्सरे क्यों करना चाहिए, कोई बताएगा? क्योंकि लेडी को तो प्रोलैप्स है तो उसमें हम चेस्ट एक्सरे क्यों कर रहे हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं पता आपको। मैम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। हाँ वेरी गुड वेरी गुड।
क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अगर जैसे हमने पढ़ा जो अदर कॉजेज है ना, जिसमें कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज वन ऑफ देम। तो जब किसी को क्रॉनिक कॉफ होता है ना, तो दे कंटिन्यूसली कॉफ, एंड जिसकी वजह से उनका प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, एंड देन आल्सो प्रोलैप्स हैपेंस, है ना। तो इसलिए वी हैव टू डू अ चेस्ट एक्सरे, एंड आल्सो a chest x-ray is also a requisition of pre-op conditions। जब किसी का pre-op anesthesia चेकअप करते हैं तो उसमें भी हम चेस्ट एक्सरे करते हैं, ठीक है। तो अगर उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है तो आइडियली हमें पहले उसका उसका कॉफ ठीक करना चाहिए, देन वी शुड अटेम्प्ट सर्जरी, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज कि अगर उसकी खांसी को हम ठीक नहीं करेंगे एंड वी विल रिटर्न, तो वॉल प्रोलैप्स हो जाएगा बाद में, है ना। सो इसीलिए वन हैज टू डू अ चेस्ट एक्सरे आल्सो, वन शुड डू, स्पेशली जिसमें खांसी की, कॉफ की परेशानी है। एंड ईसीजी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर प्री-ऑप चेक, जिसको हम सर्जरी से पहले करते हैं। इट हैज नो रिलेशन टू द प्रोलैप्स, बट प्री-ऑप जो चेकअप होता है उसमें ईसीजी इज आल्सो अ रिक्वायरमेंट। Similarly, USG and MRI जो है, these are expensive tests, but basically they tell you about the condition of the जो supports of uterus हैं, कि उसमें कितना weakness है, किसमें कितना ज़्यादा है, so that when we attempt to repair, one can pay special attention to those areas which have been identified by the MRI especially, ठीक है। Now we come to the differential diagnosis. Differential diagnosis, जैसे when we were doing studying about examination, तो जब हम वल्वा को देख रहे थे ना, तो मैंने आपसे बोला था ना कि वल्वल सिस्ट हो सकती है कोई। तो आप में से कोई बताएगा कि हाउ विल वी डिफरेंशिएट कि ये प्रोलैप्स का कोई कंडीशन है कि वल्वल सिस्ट है? चलो ठीक है, जैसे वल्वल सिस्ट है या एंटीरियर वजाइनल वॉल में कोई सिस्ट है, तो ये जो सिस्ट होते हैं ना, दे आर स्मूथ स्वेलिंग्स, स्मूथ स्वेलिंग्स होती हैं, एंड दे हैव वेल डिफाइंड मार्जिन्स होते हैं इनके, एंड दे आर नॉट रिड्यूसिबल, है ना। जो प्रोलैप्स होता है ना, यूजुअली वो उसमें स्मूथ स्वेलिंग की तरह नहीं दिखता है, उसमें जो वजाइना के आपके मार्जिन्स रुके होते हैं ना, वो भी दिखते हैं। तो और दूसरा है कि प्रोलैप्स जो होता है, इट इज अ रिड्यूसिबल स्वेलिंग। वल्वल सिस्ट एंड एंटीरियर वजाइनल वॉल सिस्ट जो होते हैं वो इरिड्यूसिबल होते हैं, कि उसको हम अगर प्रेस करेंगे ना तो वो रिड्यूस होते हैं, ठीक है। दूसरा है कि अगर कंजेनाइटल इलोंगेशन ऑफ द सर्विक्स है, तो कंजेनाइटल इलोंगेशन ऑफ द सर्विक्स इज आल्सो अ डिफरेंशियल, बट दिस इज फाउंड, इट इज फाउंड इन यंग वुमेन, एंड इसमें द सर्वाइकल पार्ट ऑफ द सर्विक्स जो होता है ना, वो लंबा होता है। सर्वाइकल पार्ट ऑफ द सर्विक्स इज कि जो हमें, मतलब सर्वाइकल पार्ट नहीं, सॉरी, जो वजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स होता है वो elongated होता है, which that is the part which we can see when we do a post-speculum examination. इसमें the differentiate करने का तरीका है कि इसमें अगर आप congenital elongation of cervix है, तो इसमें जो fornices होंगे वो deep होंगे, ठीक है। अगर हम PV करेंगे ना, per vaginal examination करेंगे, तो जब आपका vaginal part of the cervix लंबा होता है, तो उसमें जो fornices होते हैं वो deep होते हैं, ठीक है। Then another differential diagnosis of prolapse is a cervical fibroid or a polyp. Now, what is a cervical fibroid? It is a fibroid which is arising from the lips of the cervix. ठीक है? तो इसमें क्या है कि from the part of the cervix. So इसमें a cervical fibroid or a polyp usually has a pedicle. मतलब इसमें एक pedicle होता है, जिसको कि हम जब examine करते हैं, तो we can pass a finger around the pedicle. बट अगर सिस्टोसील है या यूट्राइन डिसेंट है, तो उसमें कोई पेडिकल नहीं होता, ठीक है। एंड वो रिड्यूसिबल होता है। वी शुड ऑलवेज नो कि प्रोलैप्स में जो कंडीशंस हैं दे आर रिड्यूसिबल, अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो वो रिड्यूस हो जाती है अपने पोजीशन में, बट एक फाइब्रॉइड या पॉलिप इज इरिड्यूसिबल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज क्रॉनिक इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस। दिस यूजुअली हैपेंस अगर if there is a big endometrial polyp or a fundal fibroid polyp which pulls on the uterus, तो वो धीरे धीरे inversion हो जाता है उसमें, and पूरा uterus along with the polyp the uterus may also come out. लेकिन inversion में आपको मालूम है ना कि uterus उल्टा होके बाहर निकलता है, मतलब उसका जो endometrial side होता है वो बाहर आ जाता है। And chronic inversion of uterus may also happen in
पेशेंट्स जिसमें कि क्रॉनिकली जो आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है ना वो रेज्ड है, जैसे कि अगर किसी को एसाइटिस है या किसी को अंदर एब्डोमेन में कोई लंप है विच इज पुटिंग अ कांस्टेंट प्रेशर है ना, उन कंडीशंस में chronic inversion of uterus may happen, which is again a differential diagnosis of prolapse. तो आप इसमें I now like to tell you about कि prevention कैसे करना चाहिए. So prevention can be done in labor and puerperium में. तो लेबर में आई वुड लाइक टू से कि जैसे प्रीमैच्योर बेयरिंग डाउन का मतलब है कि इफ वी आस्क अ वुमन टू बेयर डाउन बिफोर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स. आपने पढ़ा होगा ऑब्स्टेट्रिक्स में कि जब सेकेंड स्टेज शुरू होता है लेबर का, जब सर्विक्स फुली डायलेट हो जाती है उसके बाद ओनली वी आस्क द वुमन टू स्टार्ट बेयरिंग डाउन. लेकिन समटाइम्स इट हैपेंस कि स्पेशली अगर उसमें ठीक से मैनेज नहीं हो रहा है लेबर या बहुत ज़्यादा पेन्स आ रहे हैं, तो जो विमेन है दे स्टार्ट बेयरिंग डाउन इवन बिफोर द फुल डायलेटेशन हैपेंस. हाँ, तो ऐसी कंडीशंस में देयर इज वीकनिंग ऑफ द लिगामेंट्स. सिमिलरली लॉन्ग सेकेंड स्टेज भी करना होता है. आपको मालूम होगा कि कितना होता है सेकेंड स्टेज फॉर प्राइमरी विमेन में, कितनी देर का होता है सेकेंड स्टेज? आपको लेबर पढ़ाया है अभी? आप लोगों ने लेबर पढ़ लिया है? मैम अभी तो नहीं पढ़ा. अच्छा, अभी नहीं पढ़ा. तो आप थर्ड ईयर अभी सेकंड ईयर में हुआ था एक बार. अच्छा, थर्ड ईयर में हुआ था एक बार. तो अभी आपको ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या पढ़ा रहे हैं? मैम फाइब्रॉइड हुआ है और वो तो फाइब्रॉइड तो गायनी हो गया ना. ऑब्स्टेट्रिक्स में पूछ रही हूँ. ऑप्स में. हाँ, ऑप्स में क्या पढ़ रहे हो? प्रेजेंटेशंस पढ़ रहे हो? प्रेजेंटेशन भी नहीं हुआ है. अच्छा, भी नहीं हुआ. अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है. मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो सेकंड स्टेज होता है वो 1 से 2 आवर्स का होता है ना. तो बहुत लंबा सेकंड स्टेज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सेकंड स्टेज भी प्रोलॉन्ग हो जाता है तो उसमें भी जो आपका थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट्स होते हैं जिसमें कि पेरिनियल बॉडी आती है एंड लिवेटर एंड आई होते हैं, उनमें दे गेट वीकेंड है ना, कमजोर हो जाते हैं. तो उसमें भी उस सच विमेन आर अगेन प्रोन टू प्रोलैप्स. सिमिलरली जैसे अगर पेरिनियल टीयर होते हैं या उसमें पेरिनियल बॉडी को इंजरी होती है तो उसको इमीडिएटली स्टिच करना चाहिए, एक्यूरेटली स्टिच करना चाहिए प्रॉपर लेयर्स में उसको, है ना. तो मैनेजमेंट उसका अगर ठीक से नहीं होता है तो लेवेटर एनाई और पेल्विक डायफ्राम का जो सपोर्ट होता है वो वीक हो जाता है. देन अगेन सच वुमेन आर मोर प्रोन टू प्रोलैप्स. ठीक है. Then we should use delayed absorbable suture. Delayed absorbable suture इसलिए यूज करना चाहिए because it helps in healing, proper healing. ठीक है. पेल्विक फ्लोर की मसल्स को एक्सरसाइजेस को इनकरेज करना चाहिए बिकॉज जिसमें कि कीगल्स एक्सरसाइज आती है ना. तो यू शुड रीड अबाउट कीगल्स एक्सरसाइज. आपको वाइवा में पूछा जा सकता है अगर आपको प्रोलैप्स वगैरह कुछ मिल गया तो कीगल्स एक्सरसाइज कौन सी होती है पेल्विक फ्लोर की वो पढ़नी चाहिए. ठीक है. एक्सरसाइज बताना चाहिए स्पेशली जो पोस्ट नेटल पेशेंट्स होते हैं सो दैट उनका जो स्ट्रेंथ या वीकनिंग जो हुई है वो वापस रिस्टोर हो जाए. ठीक है. एंड ऑल्सो कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना चाहिए प्रॉपरली बाय ट्रीटिंग विद लैक्सेटिव्स. And one point which I think I've forgotten to add is that there should be an interval between the subsequent pregnancies, at least of 2 to 3 years. There should be an interval. वो इसलिए होना चाहिए बिकॉज डिलीवरी के दौरान जो वीकनेस आ जाती है सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस में, देर इज टाइम इनफ कि इट रिटेन्स इट्स टोन, है ना. क्योंकि अगर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज जल्दी जल्दी होंगी तो जो आपका टोन होता है मसल्स का, स्पेशली जो थर्ड लेवल के होते हैं लिवेटर नाई एंड पेरिनियल बॉडी, वो कम हो जाता है ना, विच अगेन मे कॉज प्रोलैप्स इन द फ्यूचर. कभी कभी है कि डिलीवरी के आफ्टर इफ द डिलीवरीज आर हैपन एट अ वेरी शॉर्ट इंटरवल तो समटाइम्स लेटर 2-3 years के बाद पेशेंट प्रेजेंट्स विद प्रोलैप्स. ठीक है. तो प्रिवेंशन एक होता है इन द एट द टाइम ऑफ लेबर and puerperia and interval between deliveries.
The second level of prevention is कि अगर हम उस पर ऑपरेट कर रहे हैं किसी पेशेंट को, we may be operating, we may be doing a hysterectomy for some other indications like आपका कोई उसको dysfunctional uterine bleeding है, या उसको फाइब्रॉइड है, या कोई और कंडीशन जिसकी वजह से हम हिस्टेरेक्टमी कर रहे हैं, तो पोस्ट हिस्टेरेक्टमी मतलब लास्ट में हमें वॉल्ट को सस्पेंड करना चाहिए, है ना, वॉल्ट को सस्पेंड करना चाहिए कार्डिनल लिगामेंट्स के साथ टाई कर देना चाहिए जो वॉल्ट है आफ्टर द रिमूवल ऑफ द यूट्रस। सिमिलरली जो पीछे आपका कल्डे सैक या जो रेक्टो वो जो आपका पाउच ऑफ डगलस है उसमें सूचर्स लेने चाहिए टू सपोर्ट इट, है ना, या सैक्रोपेक्सी भी करते हैं कुछ में। तो बेसिकली दिस इज की एब्डोमिनल रूट से ही जो आपका यूट्रस या जो वॉल्ट है उसको ऊपर सस्पेंड कर देते हैं, है ना। तो बाद में आफ्टर हिस्टेरेक्टमी जो प्रोलैप्स हो जाता है वीकनिंग की वजह से कुछ पेशेंट्स में वो नहीं होता है ना, बिकॉज क्या है कि वंस वी रिमूव द यूट्रस एंड सपोजिंग हमने उसके साथ ओवरी भी रिमूव कर दी तो उसके जो हार्मोन्स है वो कम हो जाते हैं पेशेंट के, है ना, बिकॉज अगर ओवरीज भी चले जाते हैं तो ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है विच अगेन मे कॉज अ वीकनिंग इन द सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस। तो इसीलिए आफ्टर हिस्टेरेक्टमी साइड बाय साइड जब कर रहे हैं वॉल्ट सस्पेंशन भी कर देना चाहिए, या एंड जो ओब्लिटरेशन होता है कल्डे सैक का वो भी कर देना चाहिए सूचर्स लगा के, सो दैट फ्यूचर में वॉल्ट प्रोलैप्स ना हो। एंड जो लास्ट में है कि ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी चाहिए, बट वो हमारे यहाँ इतना, हमारे देश में इतना नहीं होता है, बट आपको पढ़ना है तो यू शुड रीड अबाउट इट ना। पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस के बारे में हमने बात किया जिसमें कि कीगल्स एक्सरसाइजेस होती हैं, उसको 2 या 3 प्रकार की होती हैं, वो आपको पढ़ लेना चाहिए। इंटरवल रखना चाहिए बिटवीन प्रेगनेंसी सो दैट द वुमन हैज टाइम फॉर द रिकवरी ऑफ द टोन ऑफ द मसल्स, है ना, पेल्विक डायफ्राम के जो मसल्स हैं उनकी रिकवरी के लिए देयर शुड बी सम इंटरवल बिटवीन द प्रेगनेंसी। And also one should avoid heavy weight lifting postpartum period में, because अगर आप heavy weight lifting करेंगे तो then you are more prone to, because muscles वैसे ही बहुत weak हैं, supports जो है वो वैसे ही बहुत weak हैं, they may suddenly give way, तो heavy weight lifting नहीं करना चाहिए। अब ट्रीटमेंट के बारे में बहुत डिटेल में तो आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आपका अभी MBBS लेवल का ही है, बट ये है कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जिसमें कि वन वांट्स टू कंसीव फर्दर एंड हैव मोर चिल्ड्रन, वन हैज कंजर्वेटिव मेजर्स ऑफ सर्जरी, जिसमें कंजर्वेटिव मेजर्स जिसमें कि एक्सरसाइजेस भी होते हैं, पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस हैं, कीगल्स एक्सरसाइजेस हैं, एंड आल्सो some methods like pessary treatment होता है, and also some conservative surgeries भी होते हैं, है ना, reproductive age group में। elderly में usually surgery is the mainstay of the treatment, एंड अगर कोई प्रेग्नेंट है वुमन तो सर्जरी उसमें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा ना आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट पेसरी। पेसरी का क्या, पेसरी से आप पेसरी के बारे में जानते हैं कि पेसरी क्या होता है? नो मैम। पेसरी होता है ना, ये एक रबर का बना होता है, रबर का रिंग होता है। usually it is for a temporary management के लिए होता है prolapse के लिए, it is not a permanent cure, है ना, it is a temporary management of prolapse। जैसे कि किसी को, जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमन है उसको prolapse हो गया है ना, तो उसमें तो हम कुछ एकदम से कर नहीं सकते, सर्जरी नहीं अलाउड है, इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड जैसे मैंने बताया, तो उसमें वी कैन इंसर्ट अ पेसरी, है ना। इमीडिएटली आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो कि किसी को प्रोलैप्स, कभी कभी क्या है कि डिलीवरी होती है उसके बाद इमीडिएटली विद इन 2 वीक्स और 10 डेज बिकॉज मसल्स बहुत, उसके सपोर्ट्स बहुत वीक हो गए हैं, प्रोलैप्स टेक्स प्लेस, है ना। या अगर किसी को प्रोलैप्स है और वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है एंड शी वांट्स फ्यूचर चाइल्ड बेयरिंग भी करनी है, तो उसमें भी वी हैव अ टेम्पररी मैनेजमेंट ऑफ प्लेसिंग अ पेसरी। दैट पेसरी इज आल्सो यूज्ड अगर पेशेंट इज अ हाई रिस्क, सपोजिंग कि आप उसमें शी हैज सम हाई रिस्क कंडीशन, शी मे बी अ फ्रैंक डायबिटिक या उसको हाइपरटेंशन है एंड हम एकदम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, सर्जरी इज नॉट इंडिकेटेड, तो in the meanwhile we can put a pessary so that
द पेशेंट के जो सिम्टम्स है उससे उसको रिलीव हो जाता है. Because pessary से क्या है, you place the uterus back into its normal position and we put this rubber ring in the vagina. We fit it in the vagina so that prolapse does not happen. So temporary उस मैम patients, हाँ बोलो, आप बोलो. मैम किसी भी डिग्री तक का प्रोलैप्स हो तो हाँ, इससे कंट्रोल हो जाता किसी भी डिग्री का कंट्रोल हो जाता है. बिकॉज थर्ड डिग्री का भी जो प्रोलैप्स है, अनटिल एंड अनलेस वो है. इनकार्सरेटेड है, उसको आप वापस रिप्लेस कर सकते हैं. So once you replace it inside, then to keep it in that position, we place a pessary in the vagina. तो फिर उससे जैसे फिर पेस्ट्री रिमूव करेंगे तो वापस हो जाएगा वैसा. हाँ, वो वापस हो जाएगा, बिल्कुल वो वापस हो जाएगा. तो वही मैंने आपको बताया कि इट इज ए टेम्पररी मैनेजमेंट, है ना. कोई कंडीशन है कि जिसमें हम तुरंत सर्जरी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में हम पेसरी डालते हैं. एंड ऑल्सो जैसे आप देख रहे हो लास्ट में कि टू प्रोमोट हीलिंग इन अ डेक्यूबिटस अल्सर. डेक्यूबिटस अल्सर में भी क्या है कि उसको वापस डाल के एक तो एक्टिव फ्लेविन ग्लिसरीन की पैकिंग चाहिए. एंड समटाइम्स वी ऑल्सो may put a pessary, जिससे कि जब वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में अंदर चला जाएगा तो फिर उसका ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाएगा, तो वो हीलिंग में हेल्प करता है. ठीक है, तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं पेसरी के. बट पेसरी के साथ साथ कुछ परेशानियां भी हैं, है ना, विच आई विल टॉक अबाउट. कि जैसे ये पोजीशन आपको दिख रही है ना, कि ये यूट्रस वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में चला गया है एंड वी हैव प्लेस्ड अ पेसरी. ये जो टी शेप टाइप का दिख रहा है ना, ये पेसरी वेजाइना में रख दिया है. तो इससे क्या होता है कि यूट्रस वापस प्रोलैप्स नहीं करता. ठीक है, जैसे कि सेकंड पिक्चर में दिख रहा है. But the complications of pessary are also there. So one should, if one is using a pessary, one should use it carefully. तो इसमें कॉन्स्टिपेशन एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस तो इसलिए है कि बिकॉज अगर टाइटली बिल्कुल पैक्ड हो जाता है पेसरी वेजाइना में, तो इट मे पुट प्रेशर ऑन द रेक्टम जो कि पीछे, एंड ऑल्सो ऑन द यूरिथ्रा, है ना, एंड द ब्लैडर में किसी पे, तो जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेशेंट को बेड डाउन बहुत करना पड़ेगा. एंड सिमिलरली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है अगर उसका प्लेसमेंट ठीक नहीं है. तो पेशेंट में स्टार्ट ड्रिबलिंग यूरिन ऑल्सो, है ना. सपोजिंग हमने स्फिंक्टर जो ब्लैडर के ऊपर प्रेशर ठीक से नहीं पड़ रहा है, तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है. दूसरा है कि अगर पेसरी बहुत दिनों तक अंदर रह गया, है ना, पेसरी के साथ भी ये है कि अगर आप उसको डालते हैं तो देन इट नीड्स टू बी चेंज्ड एट सम पर्टिकुलर इंटरवल्स, है ना, कि उसको बाहर निकालना होता है, उसको क्लीन करके उसको अगेन रिप्लेस करना पड़ता है. लेकिन व्हाट हैपेंस इज वेरी कॉमनली इट हैपेंस स्पेशली इन एल्डरली वुमेन कि हमने पेसरी डाल दिया तो वो भूल जाते हैं, तो देन उसमें अल्सरेशन हो जाता है वेजाइनल वॉल में. कभी कभी अगर बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड हो जाए तो इम्पैक्टेड हो जाती है पेसरी, एंड इवन कार्सिनोमा वेजाइनल वॉल में हैपन अगर बहुत ज्यादा लंबा डिलेड हो जाए. So has to be very careful जब हम पेसरी करते हैं कि जो पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं उसके बारे में one has to be very वो कि इनको ठीक से इंस्ट्रक्शंस देके वापस भेजना चाहिए. बिकॉज डिस्चार्ज है, इन्फेक्शन है, इम्पैक्शन ऑफ द पेसरी. इम्पैक्शन ऑफ द पेसरी इसकी बहुत डिलेड नेग्लेक्टेड हो गई तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इट ऑल्सो. ठीक है. एंड देन स्ट्रैंगुलेशन ऑफ द प्रोलैप्स टिश्यू है कि मान लो कोई टिश्यू उसमें बीच में स्ट्रैंगुलेट हो गया पेसरी के बीच में, एंड वो ध्यान नहीं दिया या उसको प्रॉपर्ली एट द राइट टाइम उसको रिमूव नहीं किया, तो उसमें भी वन कैन पेशेंट कैन हैव अदर प्रॉब्लम्स. मैम मैम हाँ इसमें हाँ. एक्सपर्ट हैंड चाहिए कि पेशेंट खुद कर सकता है. नहीं, इसमें यह है कि भाई शुरू में अगर पेशेंट कॉग्निजेंट है, मतलब एल्डरली नहीं है, समझदार है, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई ऐसे प्लेस करना है 2-3 बार, लेकिन उसको समझाना पड़ेगा. एंड देन वन कैन देन इफ शी लर्न्स हाउ टू प्लेस इट इनसाइड तो वो अपने आप भी डाल सकते हैं. बट द पॉइंट इज कि उनको ये बताना जरूरी है कि इट हैज टू बी रिमूव्ड इन सर्टेन टाइम्स, मतलब 1 हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार वो आपको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे कि उसमें उसको रिमूव करना है, उसको वॉश करना है, क्लीन करना है, एंड देन फिर उसको प्लेस करना है ना. तो वो इंस्ट्रक्शंस बहुत, बिकॉज ये क्या होता है कि एल्डरली वुमेन में बड़ा डिजास्टर्स हो जाता है कभी कभी, बिकॉज वो लोग भूल जाते हैं और घर के लोग इतना अगर ध्यान नहीं देते हैं, तो देन दे मे लैंड अप विद सीरियस इश्यूज लाइक अ कार्सिनोमा या इम्पैक्शन. इम्पैक्शन में क्या होता है कि वहाँ का आजू बाजू का जो टिश्यू होता है उसमें नेक्रोसिस हो जाता है, तो फाउल स्मेल, फाउल डिस्चार्ज, ये सब आ जाता है. ठीक है, तो पेसरी के साथ वन शुड बी केयरफुल. हाँ,
Now about the talking about the operative treatment, जो सर्जरी के मेन एम्स होते हैं कि सबसे पहले है कि पेशेंट के सिम्टम्स जो है कि उसको जो मैकेनिकल परेशानी हो रही है ना कि कोई चीज़ बाहर आ रही है जिससे उसको चलने में दिक्कत हो रही है, उसको बैक एक बहुत हो रही है, उसको यूरिनरी इश्यूज हो रहे हैं, है ना, उसके सिम्टम्स रिलीव होने चाहिए। ठीक है, ये रिलीफ जो सिम्टम्स हैं ये आपके पेसरी से हो सकते हैं अगर पेसरी उसको प्रॉपरली लगाया जाए। ठीक है, then the second thing is to restore the anatomy. Anatomy से मेरा मतलब है कि जैसे आपका पेरिनियल जो लिवेटर एनाई मसल्स हैं या लैक्स पेरिनियम के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, लूज पेरिनियम, तो उसको हम जब एंड इवन द यूट्रस आल्सो कमिंग आउट, उसको वापस डाल के उसको जो नीचे के लिगामेंट्स हैं स्पेशली अराउंड द यूरिथ्रा एंड जो नीचे रेक्टम के पास हैं उनको हमें रिपेयर करना होता है, उनको हमें टाइटन करना होता है। जो लूजनिंग हो गई है ना फेशिया में और लिगामेंट्स में, उनको हमें टाइट करना होता है। दैट इज आल्सो एम ऑफ द सर्जरी। तो आगे जो सिस्टोसील के लिए जिस फेशिया को हम टाइट करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटीरियर कॉल्पोग्राफी, और जो पेशेंट पीछे के लिए करते हैं जो उसको हम पोस्टीरियर कॉल्पोपेरिनियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम रेक्टोसील या एंटेरोसील जो भी है उसके आसपास के जो लिगामेंट्स जो लूज हो गए हैं उनको हम अप्रोक्सीमेट करके टाइट करते हैं। ठीक है, then the third is restoring the sexual functions of the patient because per se prolapse की वजह से coital issues भी होते हैं, and also to prevent the recurrence, जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्टेक्टमी के बाद कई सारे सूचर्स ऊपर लगाते हैं जिसमें कि वॉल्ट को हम आपका जो मैकिन रॉड्स और जो आपके ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स हैं और जो राउंड लिगामेंट है इसके साथ बांध देते हैं जिससे कि जो आपका वॉल्ट प्रोलैप्स है वो ना हो, तो प्रिवेंट रिकरेंस। उसके लिए ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के मेनली ये 3 फंक्शंस होते हैं। लेकिन अगर आप इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पूछोगे तो सिम्टम्स पेशेंट के रिलीफ होने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज पेशेंट को सिम्टम्स बहुत होते हैं। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन में ज़्यादा नहीं है। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन में यही है कि जो प्रोलैप्स्ड पार्ट है उसको वापस अंदर हम वजाइना में रिड्यूस करके उसमें एक्रेफ्लेविन ग्लिसरीन का पैकिंग करते हैं, है ना, so that it becomes, so that जो स्किन है आपको मैंने दिखाया था ना वो जो प्रेसिडेंशिया में कि द स्किन हैज बिकम सो ड्राई, रिंकल्ड है, केरेटिनाइज्ड है ना, अल्सर है, तो जब हम एक्रेफ्लेविन ग्लिसरीन पैकिंग करते हैं तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सिमिलरली ईस्ट्रोजन क्रीम भी लगाते हैं। ईस्ट्रोजन क्रीम अगेन एज वी टॉक्ड अबाउट इट कि स्पेशली इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन ईस्ट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो जब आप लोकल एप्लीकेशन ऑफ ईस्ट्रोजन करते हो तो जो स्किन इम्प्रूव होती है, जो वजाइना वॉल की जो स्किन है ना वो इम्प्रूव कर जाती है, तो सर्जरी करने में आसानी होती है। इडिमा जो है ग्लिसरीन की पैकिंग करने से इडिमा जो है वो कम हो जाता है, तो इट ऑल हेल्प्स इन दी सर्जरी whenever the patient undergoes surgery. And then when we investigate, if we find कि उसको urinary infection है, UTI है, तो antibiotics भी देने चाहिए before we attempt any surgery. बिकॉज अगर हम उसको यूटीआई उसका ट्रीट नहीं करेंगे और उसको ऑपरेट कर देंगे तो बाद में पोस्ट ऑप पीरियड में पेशेंट को परेशानी हो सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट कि सर्जरी क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इन यंग वुमेन हु आर ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हम कंजर्वेटिव सर्जरीज करते हैं, जिसमें कि एक है स्लिंग सर्जरी है, मैनचेस्टर्स ऑपरेशन है, सैक्रल कॉल्पोपेक्सी है। तो एज द नेम सपोर्ट्स कि स्लिंग सर्जरी में स्लिंग को टाइट करते हैं, जो आपने पढ़ा ना कि जो इनर फाइबर्स ऑफ प्यूबो कॉक्सीजियस होते हैं जो स्लिंग बना रहे हैं ना, जो लूज हो गए हैं फाइबर्स, उनको हम स्लिंग सर्जरी में टाइट कर देते हैं। मैनचेस्टर्स ऑपरेशन इज या फॉर द गर्ल्स इज कि जिसमें सर्विक्स लंबी है बहुत, सपोजिंग एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिला है उसकी सर्विक्स ही काफ़ी लंबी है, बाकी यूट्राइन डिसेंट इतना नहीं है, तो वी कट अ पार्ट ऑफ द सर्विक्स एंड देन वी रिपेयर इट ताकि सर्वाइकल लेंथ उसका ठीक हो जाए, बिकॉज वी वांट टू प्रिजर्व द यूट्रस, है ना, वी डोंट वांट टू रिमूव इट। सैक्रल कॉल्पोपेक्सी इज ऑल्सो इज एज अ नेम सजेस्ट कि जो आपका सर्विक्स है या जो वजाइना है उसको सैक्रम के साथ, जो सैक्रल लिगामेंट्स हैं उनके साथ टाइटन कर देते हैं। तो ये एब्डोमिनल, कुछ सर्जरीज एब्डोमिनल रूट से होती हैं और फॉर द गिल्स या मैनचेस्टर्स जो है वो नीचे वजाइनल रूट से होती है। बेसिकली द एम इज कि पेशेंट को जो सिम्टम्स हो रहे हैं उसको रिलीफ हो जाता है उससे, हाँ, जैसे कि बैक एक है या उसको समथिंग कमिंग आउट का जो कंप्लेन है कि कुछ बाहर आ जाता है वो नहीं होता है।
बट जो एल्डरली वुमेन है उसमें हम वेजाइनल हिस्टेक्टमी ही करते हैं. वेजाइनल हिस्टेक्टमी मीन्स कि वी रिमूव द यूट्रस एंड जो यूट्रस का जो वॉल्ट है उसको हम सपोर्ट कर देते हैं. And if there is a large cystocele and a rectocele, जो posterior और anterior defects होते हैं उनको हम रिपेयर कर देते हैं. रिपेयर का मतलब ये है कि जो सिस्टोसील है उसको वापस रिप्लेस कर देते हैं, पुश कर देते हैं और उसके आसपास के जो लिगामेंट्स हैं उनको हम टाइटन कर देते हैं. सिमिलरली पोस्टीरियर डिफेक्ट्स में एंटेरोसील है या रेक्टोसील है तो उसमें हम जो डिफेक्ट्स हैं उनको वापस पुश कर देते हैं अंदर और उसके ऊपर जो लिगामेंट्स एंड जो मसल्स होती है, बी इट द लिवेटर एनाई, बी इट द प्यूबोकोक्सीजियस, उसको हम उनके फाइबर्स को हम इंटरडिजिटेट करके टाइटन कर देते हैं तो ताकि वो रेकरेंस फिर से ना हो. लीफोर्ट सर्जरी जो होती है ये बहुत एल्डरली वुमेन के लिए होती है, लाइक वुमेन हु आर वेरी डेबिलिटेटेड, हु आर वेरी एल्डरली, मे बी अबव 75 और अबव 80, हु इन हु आर हाई रिस्क फॉर सर्जरी, कि उनमें हम बड़ी सर्जरी अगर करेंगे कि हिस्टेक्टमी करेंगे या कुछ तो दे मे नॉट टॉलरेट इट वेल, है ना, तो उसमें हम लीफोर्ट सर्जरी कर देते हैं. दिस इज नथिंग, बस इसमें क्या करते हैं कि जो आपका एंटीरियर वॉल है, मतलब जो प्रोलैप्स पार्ट है उसको वापस अंदर पुश करके जो एंटीरियर वेजाइनल वॉल है और जो पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल है उसको हम आपस में सूचर कर देते हैं, है ना, मतलब बिल्कुल बंद करते हैं तो नीचे से वजाइना फिर आपका बंद हो जाता है. So obviously this Leifert surgery is not for women who have an active sexual life. It is only for the very elderly women इनमें की who are high risk for hysterectomy or other repairs. ठीक है, तो उसमें हम Leifert surgery करते हैं. तो अब I would like to end this lecture. अगर आपको कुछ doubts हैं या कुछ हैं तो maybe whenever I take a next class आप मुझसे पूछेंगे तो I will be, या इसके बाद भी if you have any questions you can ask me. नो क्वेश्चन मैम. नो क्वेश्चंस? अच्छा Yes. ठीक है. आप अब एक बार इसको पढ़ लेंगे. आप लोग कौन सी बुक से पढ़ते हैं, शॉर्ट से पढ़ते हैं कि किसी और से? दत्ता से मैम अभी तो. आप लोग दत्ता से पढ़ते हैं, ठीक है. आप पढ़ शॉ भी लेंगे है. इसको, शॉ भी है, ठीक है. आप दत्ता से पढ़ लेंगे या शॉ से पढ़ लेंगे. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज तो आप मुझसे जब व्हेनेवर आई टेक द नेक्स्ट लेक्चर अगले हफ्ते तो आप पूछिए, ठीक है. यस मैम. थैंक यू मैम.